my dear students of Standard 9, welcome you all in today's online class. My dear friends, keeping the importance of Term 1 examination which is coming soon. Dear students, I hope all of you are preparing for that examination, that is Term 1. So dear students, revision is very important for all of you. So go revision, go in detail in revision practice so that you can increase your learning power as well as you can get good marks. So for getting good marks, all of you have to revise all the chapters which you have learned so far, which you have taught so far. So dear students, during learning process, you must have try to learn all the concept which you have learned so far. So dear friends, it is time to learn chemistry from chemistry revision. Chemistry revision is going on. Revision for Term 1, Chapter 2 is Matter Around Us Pure. And I have described the main important points in first video which was related to the revision process. So in that video, I have explained about some important concept associated with this chapter. I hope students, all of you have understood that one clearly. So dear students, today I have selected the topic that is associated with the chapter is Matter Around Us Pure. Solution, suspension and colloids. These are the three topics on which we will discuss a lot. Solution I have described in my previous video. Suspension, it is still to be required for discussion, and colloids. So dear friends, simultaneously we will discuss all the three topics that I have selected. Here is a solution, suspension and colloids. So all these three will be discussed here. So let us discuss one by one. So first of all students, सॉल्यूशन क्या होता है आपको पता ही है, जैसे मैंने डिस्क्राइब किया है स्टूडेंट. सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन कैसे बनाओगे, सॉल्यूशन क्या होता है. तो सॉल्यूशन इज जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, होमोजेनियस मिक्सचर. इट इज जस्ट काइंड ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर of two or more substances. It means solution is just kind of the mixture of two or more kinds of the substances. Here is an important point that is noted in case of the solution, that solution is a homogeneous mixture. What is the real meaning of the homogeneous? Homogeneous explains that homogeneous words indicates that same throughout. Okay. इक्वल थ्रू आउट इट मीन्स द सेम थ्रू आउट का मतलब है कि अगर हम सोल्यूशन प्रिपेयर किए हैं कुछ सोल्यूट पार्टिकल डाल करके, जैसे साल्ट डाल दें, ठीक है, जैसे यहाँ पे साल्ट डाल दें, इसमें दिस इज द वाटर और इसमें साल्ट डाल दें, ठीक है, साल्ट पोर दें. साल्ट इसमें डालने के बाद क्या है, आप इसका टेस्ट करोगे तो आपने किसका सोल्यूशन बनाया, साल्ट सोल्यूशन. किसका सोल्यूशन बनाया स्टूडेंट्स, साल्ट सोल्यूशन आपने बनाया, ठीक है. तो इसका टेस्ट जो होगा, ये टेस्ट दैट इज द साल्टीन टेस्ट, साल्ट टेस्ट देगा. और ये टेस्ट इसका एवरी पार्ट, कहीं से भी आप वाटर अमाउंट लोगे वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, इक्वल आएगा. इसीलिए इसको होमोजीनियस कहा जाता है. इसका मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स कंप्लीटली गेट्स डिजॉल्व इन दैट. ओके, सो इट मीन्स द सोल्यूशन इज कंप्लीटली रेडी हियर. सो सोल्यूशंस, as you are looking that solution is the just kind of the mixtures, homogeneous mixtures, and it is a combination of two or more substances. Okay, more substances, and just you have seen the many kinds of the solution. Solution may be categorized in many ways, just like मैं एग्जाम्पल दूँ कि जैसे एग्जाम्पल आपके पास आ जाए, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल. लिक्विड का लिक्विड सोल्यूशन में जैसे आप देखते हो एसिटिक एसिड विनेगर जैसे होता है, ठीक है, एसिटिक एसिड विनेगर, उसका फार्मूला होता है CH3COOH. एसिटिक एसिड विनेगर जिसे सिरका कहते हैं, सिट्रिक एसिड, इसको आप एसिटिक एसिड, दिस इज द एसिटिक एसिड. ओके, ये एसिटिक एसिड ये जो आपका दिख रहा है विनेगर, सिरका, इसको स्टूडेंट्स ये किसमें सोल्यूशन प्रिपेयर्ड है, ये वाटर में प्रिपेयर्ड है, ठीक है. तो वाटर में प्रिपेयर्ड है स्टूडेंट्स, दिस सोल्यूशन इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इन वाटर. दैट्स व्हाई दिस सोल्यूशन विल बी टर्न्ड एज द लिक्विड सोल्यूशन. जैसे दोनों फेज में है, लिक्विड मतलब वाटर है, ये लिक्विड, एसिटिक एसिड भी लिक्विड है, तो लिक्विड सोल्यूशन हो गया.
गैस लिक्विड में आप देख सकते हो, गैस लिक्विड्स, गैस का लिक्विड में, ठीक है, गैस टू लिक्विड, गैस का लिक्विड में सोल्यूशन आपको देखने को कहाँ मिलता है स्टूडेंट्स? गैस टू लिक्विड, गैस टू लिक्विड सोल्यूशन जैसे आप लोग पीते हो जैसे ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वाटर में सोडा वाटर जैसे है। तो इस तरह एग्जांपल आप देख सकते हो कि जैसे उसमें बबल्स निकलता है सोडा वाटर में, तो वो गैस टू लिक्विड सोल्यूशन होता है ना, दैट इज द गैस टू लिक्विड सोल्यूशन। और एयर टू एयर आप देख सकते हो, एयर टू एयर में आपको पता ही है कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं। देयर आर सो मेनी वेरियस काइंड्स ऑफ द गैसेस विच आर फाउंड इन अवर एटमॉस्फेयर, एंड नाइट्रोजन दैट इज फाउंड इन ग्रेटर एक्सटेंट, इन मेजर एक्सटेंट, दैट इज वाई other gases just like oxygen, okay, and other inert gases which are found in the atmosphere. So greater extent किसका है? नाइट्रोजन का, that is the nitrogen as will be considered as the solvent and other will be considered the solute. The solution thus formed is the gas to gas solution. तो आप यहाँ पे देख सकते हो गैस टू गैस में भी आप देख सकते हो, ठीक है, गैस टू गैस में सोल्यूशन आप देख सकते हो स्टूडेंट्स। सॉलिड गैस में देख सकते हो, सॉलिड गैस में स्मोक जैसे आता है, डस्ट पार्टिकल उड़ते रहते हैं। तो इस तरह देयर आर सो मेनी वेरियस काइंड्स ऑफ द कैटेगरीज ऑफ द सोल्यूशन की बहुत सारी कैटेगरीज हैं। और एक वर्ड्स मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, ट्रू सोल्यूशन दैट इज ट्रू सोल्यूशन। अब ट्रू सोल्यूशंस क्या है स्टूडेंट? व्हाट इज द ट्रू सोल्यूशन? अब ट्रू सोल्यूशंस क्या है स्टूडेंट्स? क्योंकि ट्रू सोल्यूशन जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो उनकी जो साइज है 10⁻⁻10 मीटर है। 10⁻⁻10 ऑर्डर का साइज का मतलब है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स इतने छोटे हैं, इतने स्मॉलर हैं, माइक्रोस्कोपिक, कि इनको एक और अलग नाम से भी जाना जाता है। ये जैसे मैंने ट्रू सोल्यूशन बोला, इसको मॉलिक्यूलर सोल्यूशन भी आप बोल सकते हो। यू कैन जस्ट लोकेट एज मॉलिक्यूलर सोल्यूशन। क्यों बोल सकते हो मॉलिक्यूलर सोल्यूशन? क्योंकि इनका जो ऑर्डर है दैट इनका जो ऑर्डर है, देखो 10⁻⁻10 सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो ऑर्डर है 10⁻⁻10 मीटर, विच इज सिमिलर टू द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूलर से रिलेट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल से, इसलिए इनकी जो साइज, इसलिए हम इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सोल्यूशन। तो ट्रू सोल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स? जल्दी जितने भी सोल्यूशन बनाए जाते हैं, जैसे साल्ट सोल्यूशन इज ए ट्रू सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन दैट इज ट्रू सोल्यूशन। ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, इनका ऑर्डर आप देखो यहाँ पे 10⁻⁻10 मीटर होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर ट्रू सोल्यूशन को डार्क रूम में रख दिया जाए, ठीक है, ट्रू सोल्यूशन को डार्क रूम में रख दिया जाए और इसमें लाइट पास कराई जाए, टॉर्च इस पे मारा जाए, तो जैसे ही आप टॉर्च यहाँ पे स्टूडेंट्स इसमें फ्लैश करोगे, टॉर्च मारोगे, तो आप देखोगे कि जो टॉर्च का ये जो लाइट है, ट्रैक है, यहाँ पे तो आप फिल किए हो, ठीक है, दिस इज द सोल्यूशन। तो जो लाइट का ट्रैक स्टूडेंट्स, दिस विल नॉट बी विजिबल, द ट्रैक ऑफ लाइट विल नॉट बी विजिबल। इसका मतलब पूरा वाइट ही रहेगा स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पे ऐसे जा रहा है, दिस विल बी द मोड ऑफ द फ्लैशिंग ऑफ द लाइट। तो इसका जो पूरा ट्रैक नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि पार्टिकल्स इतने छोटे ऑर्डर के हैं, जैसे मैंने बताया 10⁻⁻10 मीटर। तो जब लाइट इसमें मारोगे तो लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी, लाइट विल नॉट स्कैटर, particles are so fine that the particles are unable to scatter the light, so scattering phenomena will not take place, hence the path of light will not be visible. It means the path of light cannot be visible and the light does not renders, ऐसा ट्रैक नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे आप किसका प्रॉपर्टी देख रहे हो स्टूडेंट्स? सोल्यूशन की प्रॉपर्टी देख रहे हो। जस्ट यू आर लुकिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन की मैंने कैटेगरी बता दी, वैरायटी बता दी, सोल्यूशन की आप क्वालिटी भी देख रहे हो स्टूडेंट्स। तो सोल्यूशन में इसकी कैरेक्टरिस्टिक सोल्यूशन की क्या होगी स्टूडेंट्स? व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सोल्यूशन? सोल्यूशन की बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहली बात तो आएगी आपकी प्रॉपर्टीज में, सोल्यूशन को जैसे ट्रू सोल्यूशन आपने देखा 10⁻⁻10 मीटर। और एक इसकी सबसे खास बात ये है स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ट्रू सोल्यूशन में ट्रू सोल्यूशन स्टेबल होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेबल होने का मतलब है कि इसमें फाइन जो पार्टिकल्स डिजॉल्व हैं, जैसे आपने शुगर साल्ट का सोल्यूशन बनाया, तो इसको आप जब रख दोगे फॉर सम टाइम्स, तो जो पार्टिकल्स इसमें हैं, सॉल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व हैं, विल नॉट सेटल डाउन, ये सेटल डाउन नहीं होंगे, अंदर बैठेंगे नहीं, ठीक है, अंदर नहीं बैठेंगे।
जैसे आप एक चाक पाउडर ले लीजिए, चाक ले लीजिए, ठीक है। आप चाक ले लीजिए और वाटर ले लीजिए, चाक को वाटर में डिजोल्व करिए, देखिए वहाँ पे रिएक्शन होगी, ठीक है। एक रिएक्शन होगा क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट है, वाटर से रिएक्ट करेगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट वाटर से रिएक्ट करेगा स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इमिट होगी और आप देखोगे कि चाक ये कम्प्लीटली इसमें डिजॉल्व हो जा रही है, लेकिन आप देखोगे कि चाक जो फाइन पार्टिकल्स हैं यहाँ पे कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होगा, चाक विल नॉट कम्प्लीटली गेट्स डिजॉल्व, इट मीन्स द चाक पार्टिकल्स विल बी स्प्रेडेड थ्रू आउट द इंटायर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। अब इसमें देखिए, इसमें पूरी जगह फैल जाएंगे चाक पाउडर, ठीक है, चाक पूरी जगह फैल जाएंगे। और इसको अगर चाक को आप रख दोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे नीचे इसके नीचे लेवल पे फाइन मिल्क टाइप का रेजिड्यू यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा, मिल्की रेजिड्यू, ठीक है। मिल्क टाइप का मिल्की रेजिड्यू विल सेटल डाउन देयर। अगर आप इसको कुछ देर के लिए रख दोगे यू कैन ऑब्जर्व देयर दैट मिल्क द फाइन पार्टिकल्स which are not still dissolved in that will settle down at the bottom। ये पूरे के बॉटम में यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन कर लेंगे, नीचे बैठ जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स कि सोल्यूशन के केस में तो ऐसा नहीं हुआ, दिस विल नॉट बी पॉसिबल, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल इन केस ऑफ द सोल्यूशन, बट as you are looking in case of the suspension, so the size of the particles are bigger than the solution। अब पार्टिकल की साइज जो होगी यहाँ पे सस्पेंशन में बिगर होगी, सस्पेंशन में यहाँ पे बिगर होगी, तो दैट्स व्हाई द पार्टिकल्स सेटल डाउन, इसलिए पार्टिकल्स क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स सोल्यूशन को आपने देखा, सस्पेंशन आप यहाँ पे देख रहे हो। सस्पेंशन का नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सस्पेंशन? सस्पेंशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर, डिस्कस अबाउट दैट। ये सोल्यूशन को आपने देखा स्टूडेंट्स, सोल्यूशन तो आपका होमोजेनियस मिक्सचर है, तो सस्पेंशन कैसा है, व्हाट इज द सस्पेंशन? सस्पेंशन जस्ट काइंड ऑफ द हेट्रोजेनियस मिक्सचर। सस्पेंशन हमारा क्या स्टूडेंट्स, हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड्स विदाउट डिसॉल्विंग इट। इसका मतलब है कि सस्पेंशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होंगे, सॉल्यूट पार्टिकल्स विल नॉट डिसॉल्व कंप्लीटली, इसमें कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होंगे। साइज क्या होगी, सोल्यूशन से बड़ी होगी, ओके, साइज आर बिगर। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया, चाक वाटर मिक्सचर, मडी वाटर ले लीजिए, ठीक है, मडी वाटर जिसमें आप बहुत सारी इम्प्योरिटीज डिजॉल्व होती हैं, मडी वाटर। तो मडी वाटर को आप यहाँ पे बीकर में आप फिल कर लोगे, तो इसमें भी आपको देखोगे कुछ देर बाद क्या होगा कि सस्पेंशन यहाँ पे नीचे सेटल डाउन होगा, और आप फिल्टर पेपर से जब इसको फिल्टर करोगे तो वाटर कैन बी फिल्टर्ड बट रेजिड्यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। जैसे चाक का मैंने एग्जांपल लिया था स्टूडेंट्स, तो चाक जो मिल्क कलर की है, ये आप जब इसको फिल्टर पेपर से जब इसको फिल्टर करोगे तो चाक विल रिमेन एज अ रेजिड्यू, रेजिड्यू के फॉर्म चाक बच जाएगी एज ए प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे आप देखा स्टूडेंट्स, फ्लोर इन वाटर, आप फ्लोर को, आटे को वाटर में डिजॉल्व कर लीजिए, उसमें भी आप देखोगे कुछ समय बाद वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। तो सॉलिड पार्टिकल्स एंड वाटर रिमेन सेपरेटेड इन अ सस्पेंशन, तो पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व वाटर। आप सस्पेंशन में क्या क्वालिटी देखा, व्हाट यू हैव सीन इन केस ऑफ द सस्पेंशन? सस्पेंशन में आपने क्या देखा स्टूडेंट्स, द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल सस्पेंशन इज लार्जर, इट इज लार्जर देन 100 नैनोमीटर इन 100 नैनोमीटर रेंज में है। देखिए यहाँ पे सस्पेंशन की ऑर्डर क्या स्टूडेंट्स, 100 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। तो 100 नैनोमीटर का मतलब कितना मीटर हो जाएगा, 100 1 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁹, दिस विल बिकम 10⁻⁷ ऑर्डर की हो जाएगी, 10⁻⁷ मीटर। ये देखिए अब यहाँ पे आपने ऑर्डर कितना देखा था सोल्यूशन में, सोल्यूशन में 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो अभी देखिए ये थोड़ा सा इससे बिगर हो जाएगा क्योंकि ऑर्डर इसका 10⁻⁷ है, ये थोड़ा 10⁻⁻10 है।
यहाँ पे आपने एक चीज देखा स्टूडेंट्स कि साइज क्या है सॉल्यूट पार्टिकल्स की थोड़ा सा बिगर है इन कंपेरिजन टू सोल्यूशन। यहाँ पे आप कंपेयर करके देख सकते हो। अब यहाँ पे कंपेयर कराया जाए 10⁻⁻10 मीटर और 10⁻⁷ मीटर। आप किधर बताओगे? इधर बताओगे ना। 10⁻⁷ मीटर इज बिगर देन द 10⁻⁻10 मीटर। In this way we can classify the solutes size. On the basis of that we can differentiate solution and suspension. So here we have found out that the size of the solute particles in case of the suspension were found bigger in comparison to solution. That's why the settle यहाँ पे sedimentations settle down देखने को मिलता है इसमें सस्पेंशन में, सोल्यूशन में नहीं देखने को मिलता। अब बात क्या आती है, क्या लाइट अगर इसके पास कराएंगे तो क्या पाथ विजुअल होगा? ऑफ कोर्स पाथ विजुअल होगा। जब लाइट इस पे हम लोग पास कराएंगे तो साइज थोड़ा सा बिगर है तो क्या होगा, इस पे आप देख सकते हो 100 नैनोमीटर की डायमीटर से लार्जर है, 100 नैनोमीटर से लार्जर साइज में है। तो अब इस पे जब ग्रेटर देन द 100 मीटर साइज में, तो स्टूडेंट्स लाइट जब इस पे हम लोग फॉल कराएंगे सस्पेंशन में तो यू कैन सी दैट द पाथ विल बी विजिबल। अब इस पे अगर लाइट पास कराएंगे सस्पेंशन में तो पाथ क्या होगा, ट्रैक क्या होगा स्टूडेंट्स, ट्रैक यहाँ पे विजिबल होगा। तो द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर। द सस्पेंशन ऑफ पार्टिकल सस्पेंशन डाउन सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम, सस्पेंशन सेटल डाउन बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट बिकॉज इट्स पार्टिकल आर क्वाइट लार्ज। स्कैटरिंग लाइट की होती है, ठीक है, स्कैटरिंग होती है और इसको थोड़ा सा बिगर साइज में होते हैं इसलिए इसको फिल्टर पेपर से नहीं कर सकते हैं। पार्टिकल सस्पेंशन पास थ्रू फिल्टर पेपर्स सो द सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड। इसलिए पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर। अब इसमें देखिए साइज बड़ी होगी, साइज बिगर है तो डेफिनेटली जब इसको फिल्टर पेपर से आप फिल्टर करोगे तो ये फिल्टर पेपर से पास नहीं होंगे। इसका मतलब है कि फिल्टर पेपर यूज करके इसको सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन सोल्यूशन के केस में आपने देखा कि फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते। अब बात आती है देखिए कोलाइड्स की। तो कोलाइड्स स्टूडेंट्स, कोलाइड्स इज द इंटरमीडिएट स्टेज। इट मीन्स द साइज ऑफ द कोलाइड्स पार्टिकल्स विल बी ग्रेटर देन द सोल्यूशन बट स्मॉलर देन द सस्पेंशन। अब सस्पेंशन और सोल्यूशन के बीच का जो इंटरमीडिएट स्टेज है दैट इज द कोलाइड्स। तो कोलाइड सोल्यूशंस, कोलाइड्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, कोलाइड इज काइंड ऑफ सोल्यूशन इन विच द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज इन ट्रू सोल्यूशंस एंड दैट इन सस्पेंशन। तो सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की जो एक स्टेज है दैट इज द कोलाइड्स। तो कोलाइड्स ऐसे आपको कोलाइड्स की पार्टिकल की साइज थोड़ी सी बड़ी होती है। ओके, जैसे आपने बहुत सारे एग्जांपल देखा, जैसे फैट मिल्क देखा, ठीक है, मिल्क। तो मिल्क को अगर हाई मैग्निफिकेशन पावर की लेंस से देखा जाए स्टूडेंट्स, मिल्क का छोटा सा ड्रॉप अगर हाई एम्प्लीफिकेशन पावर की माइक्रोस्कोप से अगर इसको देखा जाएगा तो इसमें बहुत सारे फैट के जो सराउंडेड फैट पार्टिकल्स कैन बी विजिबल। तो फैटी मिल्क का फैट आसानी से देखा जा सकता है। तो इस तरह यहाँ पे देख सकते हो कि जो एक्चुअली व्हाट इज द नेचर ऑफ द कोलाइड्स। कोलाइड्स का नेचर क्या होता है स्टूडेंट, व्हाट इज द नेचर ऑफ द कोलाइड्स। कोलाइड्स का नेचर देखोगे कि एक्चुअली ये होमोजीनियस देखने में रहता है। इट अपीयर जस्ट लाइक होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज अ हेटेरोजीनियस इन नेचर, लेकिन ये हेटेरोजीनियस होता है, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, कोलाइड्स, सस्पेंशन और सोल्यूशन तीनों की एक साथ स्टडी कर रहे हैं और ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। दिस थ्री आर वेरी इम्पोर्टेंट। आप देखिए स्टूडेंट्स, कोलाइड्स के केस में अगर बात करते हैं तो कोलाइड्स के केस में अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो कोलाइड्स में जैसे आपने मिल्क देखा, सोप, ठीक है, सबसे एग्जांपल बेटर है सोप का। तो सोप का जैसे सोप बबल्स निकलते हैं, आप देखोगे जब आप कपड़े वगैरह धोते हो तो सोप बबल्स निकलते हैं। तो सोप बबल्स में क्वालिटी ये होती है कि सोप बबल्स को आप फिल्टर करोगे तो पूरा वो चीज़ उसके साथ पास हो जाता है, क्योंकि पूरा सोप बबल्स उसी के साथ निकल जाता है। और सोप बबल्स ट्रांसलूसेंट भी है, ठीक है, कम्प्लीटली उसमें विजिबल भी नहीं होता है, कम्प्लीटली आप देख भी नहीं पाते हो। तो सोप बबल्स इज जस्ट काइंड ऑफ एग्जाम्पल ऑफ द कोलाइड्स। कोलाइड्स का एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। बहुत सारे कोलाइड्स के एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट्स, जैसे आप देखते होंगे कि जैसे सेविंग क्रीम जो फोम बनाती है, ठीक है, जेल, पेंट,
ठीक है। तो ये बहुत सारे एग्जांपल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं कोलैड्स के बहुत सारे एग्जांपल आपके बुक में दिए गए स्टूडेंट्स। आप उनको मैंने बताया था जब वीडियो आपको पढ़ाया था, तो उस समय आपको रिवाइज किया था ये सारी चीज़ें। कोलैड्स की प्रॉपर्टी क्या होगी, व्हाट इज द कोलैड्स प्रॉपर्टीज। अब आप ये समझ गए होंगे कोलैड्स क्या है। साइज इंटरमीडिएट है बिटवीन द सस्पेंशन और सोल्यूशन के पार्टिकल से थोड़ा सा बिगर होगा टू सोल्यूशन से, लेकिन यहाँ सस्पेंशन से थोड़ा सा छोटा होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट स्टेज दैट इज द कोलैड्स। कोलैड्स का साइज आप देख ही रहे हो। कोलैड सॉल्यूशंस टू बी होमोजीनियस, एक्चुअली होमोजीनियस होते हैं, लेकिन होमोजीनियस दिखते हैं लेकिन ये होमोजीनियस नहीं होते, ये हेटेरोजीनियस होते हैं। द साइज ऑफ द पार्टिकल कोलैड सॉल्यूशन इज बिगर देन दोज आर इन ट्रू सॉल्यूशंस। तो इट इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर डायमीटर। इसका मतलब 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के रेंज में ही होता है। 1 नैनोमीटर 100 नैनोमीटर के बीच में ही लाई करती है, तो इसीलिए इंटरमीडिएट है, ठीक है। 1 नैनोमीटर यहाँ पे आप देख सकते हो ये है, ठीक है, और 100 नैनोमीटर अभी आपने देखा सस्पेंशन के केस में ग्रेटर देन। तो इस तरह सोल्यूशन सस्पेंशन की क्वालिटी हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं स्टूडेंट्स। द पार्टिकल ऑफ मोस्ट ऑफ द कोलैड्स कैन नॉट बी सीन इवन विद माइक्रोस्कोप। कोलैड्स के बहुत सारे पार्टिकल्स को हम लोग माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। द पार्टिकल ऑफ कोलैड्स कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, सो कोलैड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो कोलैड्स के पार्टिकल भी बहुत सारे पास हो जाते हैं फिल्टर पेपर से, इसलिए कोलैड्स को भी फिल्टर प्रोसेस से, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। और इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि क्या ये लाइट को पास करेगा। कोलैड्स स्टेबल्स हैं, कोलैड नॉट सेपरेट कीपिंग। कोलैड्स को आप रख दोगे तो जल्दी से सेपरेट नहीं होते हैं। कोलैड्स स्कैटर बीम ऑफ लाइट, इसका मतलब बीम ऑफ लाइट कोलैड्स में स्कैटर होती है। स्कैटरिंग, जब इसमें लाइट आप फ्लैश करोगे कोलैड्स में से मिल्क में लाइट आप मारोगे तो उसमें आपको पाथ ऑफ लाइट विल बी विजिबल। यस, कोलैड में एक सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कोलैड्स में दो फेज हो। जैसे आपको सोल्यूशन में देखा था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जब आप मिलाते हो तभी आपका सोल्यूशन फॉर्म होता है, तो सोल्यूशन के केस में देखा। और कोलैड्स में भी क्या होता है, दो स्टेज ऐसे इसमें भी होती हैं। एक होता है डिस्पर्स्ड फेज, एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज, तो जैसे सॉल्यूट होता है दैट इज डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। तो कोलैड के केस में जो सॉल्यूट का काम करता है दैट इज द डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्जन मीडियम जैसे सॉल्वेंट होता है उसी तरह इसमें डिस्पर्जन मीडियम होता है। जैसे एरोसॉल, स्मोक, जैसे स्मोक की बात करें तो स्मोक आपका देखिए डस्ट, इसमें डिस्पर्स्ड फेज क्या है, डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, जैसे गैस है तो बहुत स्मोक जैसे बनता है। आप देखिए यहाँ पे जैसे फोम, गैस क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है। फोम में आप देखिए, फोम में गैस क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है। लिक्विड डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड मीडियम, तो गैस क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है, और लिक्विड क्या है, डिस्पर्जन मीडियम है। तो जैसे फोम में आपने देखा कि सेविंग क्रीम में इंसुलेटिंग फोम, फोम रबर, स्पंज एंड ब्रेन, बहुत सारे एग्जांपल आपके यहाँ पे हैं। जैसे जेल है, जेल का आपने देखा स्टूडेंट्स, जेल में जेल जैसे होता है gels, jellies, gelatin, hair gels. Gel is a semi-colloids in which a continuous network of solid particles are dispersed in a liquid. Solid particles liquids में dispersed होते हैं continuously. तो ये जेल का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। तो बहुत सारे एग्जांपल आप यहाँ पे स्टूडेंट्स डिस्क्राइब कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलैड्स, यहाँ पे तीनों की एक साथ स्टडी की गई स्टूडेंट्स, और ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। I hope students all of you have understood this one. Let us move towards the next point. अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कंसंट्रेशन। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज concentration of solution, concentration of solution की कंसंट्रेशन का मतलब है कि सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो पर यूनिट कितने डिजॉल्व हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ
प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन। किसी भी क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशंस में आप क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन फिक्स कर लीजिए, या 100 ग्राम्स 10 ग्राम, किसी भी सोल्यूशंस में कितने सोल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व हैं। अगर ज़्यादा अमाउंट्स में डिजॉल्व होंगे तो इसका मतलब उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। कंसंट्रेशन का आप यहाँ पे एक तरीके से और ले सकते हो स्टूडेंट्स, जैसे कोई चीज़ गाढ़ापन होना, जैसे बहुत सारी चीज़ें उसमें आप डिजॉल्व, बहुत सोल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व कर दोगे तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा। कंसंट्रेट का मतलब वाटर की क्वांटिटी थोड़ा सा कम हो जाएगी। So the concentration of solution is the amount of solute present in the given quantity of the solution. Concentration can be defined as the amount of the solute particles dissolved in the given quantity in the given quantity of the solution. इसी quantity of solutions में कितना solute dissolve है, that decides the concentration. solute अगर ज़्यादा dissolve होगा स्टूडेंट्स, ज़्यादा क्वांटिटी में डिजॉल्व होगा तो कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो कभी कभी क्या होता है, कंसंट्रेशन निकालने के लिए आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिए जाते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन हम निकालें कैसे, हाउ कैन यू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, हाउ कैन यू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, लेट अस नो। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इसको निकालेंगे कैसे, फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो मास ऑफ सोल्यूट। इसका वेट आपको पता होना चाहिए, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। 100 का मतलब है कि हम इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस कर रहे हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का मतलब 100 परसेंटेज में हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस इन अ परसेंटेज, ठीक है। अगर मान लो कि किसी भी सोल्यूशंस में सोल्यूट कितना है, साल्ट मान लो कितना है, साल्ट मान लो 10 ग्राम, ठीक है, साल्ट इज 10 ग्राम, साल्ट आपका 10 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्वेंट, वाटर कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट यहाँ पे क्या लिया गया है, वाटर। मास ऑफ सॉल्वेंट इधर 90 ग्राम है, ठीक है। तो आपको निकालना है स्टूडेंट्स मास ऑफ सोल्यूशन, ये आपको निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालोगे, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू, देखिए सॉल्वेंट का जो दिया है, साल्ट डिजॉल्व है 190 ग्राम में, क्वांटिटी की बेसिस पे दे सकते हो, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये आपका क्या है, सॉल्वेंट है 90 ग्राम, और दिस वन इज द सोल्यूट। तो सोल्यूट का मास तो दिया है, आप पुट कर दोगे कितना, 10 ग्राम, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन निकालोगे तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो साल्ट 90 ग्राम 10 ग्राम और ये 90 कितना हो जाएगा, 100 ग्राम, एंड इंटू 100 पुट कर दोगे। इसके बाद यहाँ पे वैल्यू आप रख के सॉल्व कर लोगे, आंसर कितना जाएगा, 100 कट जाएगा, दैट इज 10। तो 10 ये आपका क्या आएगा, 10% बाई मास, 10% बाई मास, 10% बाई मास, मास में 10% आ जाएगा, दिस विल कम्स इन मास परसेंटेज 10, तो मास बाई 10%। ऐसे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आपकी बुक में दिया गया स्टूडेंट्स। कंसंट्रेशन निकालने के लिए कैसे कंसंट्रेशन निकालोगे, ये चीज़ आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो ये कंसंट्रेशन आप यहाँ पे निकाल सकते हो इस फार्मूले का यूज करके, यू कैन अप्लाई दिस फार्मूला टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन, आप कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका जो टॉपिक दिया हुआ है सेपरेशन टेक्निक्स, डिफरेंट मेथड्स, जैसे फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, ओके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, पेपर क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन, all other so many methods associated for the separation techniques, magnetic separation. So all of you have to revise all these things very clearly so that you can achieve the highest achievement in the coming examination. So best of luck students, revise all the contents clearly. There are 2 chapters which are selected for the term 1 examination. Chapter 2 is matter around us pure, and chapter 3 atoms and molecules.
So dear students, I hope all of you are preparing all the contents very well. Thank you students for watching today's video.